मीन आपके साथ में ही है, वो हमारा है, वो हमारा एक टूरिज्म में इट्स अ वन. देन फ्रॉम आनंद विहार, we have to start with differences in business systems and practices. When we are talking about a business within a country, हमारा बिजनेस सिस्टम जो भी अगर हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ द लॉ विच हैज़ टू बी इन इंडियन लेजिस्लेशन जो है, whether it is the labor law, whether it is the company law, whether it is the partnership act or आपका cooperative act, everything is same when wherever you are living. But when you go out of the country, then the business systems, the practices, जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह पे जाओगे, means you are living in Delhi or Kolkata, you will find the similar kind, may not be exactly the same but similar. The differences in business systems and practices are considerably much more among countries than within a country. Countries differ from one another in terms of socio-economic development, cost efficiency, economic infrastructure, market support, business customs and practices. क्योंकि हमारा हम अपने हिसाब से रहे हैं. अगर आप हमारे कस्टम मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखोगे तो 2019 वाला जो एक्ट है दैट इज़ गुड. बट अगर आप 1986 का देखते ना तो यू विल फाइंड दैट दीज एक्ट मतलब दीज वर नॉट दैट मच इफेक्टिव. बट if you look into the consumer protection act of US, तो you will see that they have lots of मतलब आप कोई भी छोटी सी छोटी गलतियां भी आप नहीं कर सकते हो कंज्यूमर के साथ, यू विल बी स्यूड. इंडिया में ना हम गलती करके निकल सकते हो इफ देर मतलब कि बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स. अब the system has changed. So when you are working across the border, तो आपको हर एक सिस्टम को रखना पड़ेगा ध्यान से कि उस कंट्री में आप जो कर रहे हो ऐसा ना हो कि आपने कोई सिस्टम किया विच में बी एक्सेप्टेड इन योर कंट्री, इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन दैट कंट्री. Even the name of a company, even the name of a company has effects. All such differences make it necessary for firms interested in entering into international markets to adapt their production, finance, human resource, marketing plan as per prevailing in that international market. तो आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलना होगा. In India, there are certain unorganized sectors. फूड सेक्टर हमारा काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है. बट इफ़ यू गो टू एनी अदर कंट्री दे आर हैविंग ऑल ऑर्गेनाइज. मैंने उस दिन आपको एक आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल ऑफ कैनेडा. दैट इन कैनेडा इफ़ यू आर वर्किंग whatever work you are doing, you have a fixed income. Here we don't have. So that is the system. फॉर द अदर कंट्रीज उनके लिए यहाँ आके काम करवाना आसान है, हमारे लिए दूसरी कंट्री में जाकर ऐसा काम करवाना मुश्किल है. पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑलवेज लुक इनटू ओके अब यूएस में कौन आने वाला है, बिकॉज उनका पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है क्योंकि दे वुड बी मेकिंग द फॉरेन पॉलिसीज. एवरी country has its own foreign policy to deal with another country. हमारे foreign policies towards certain country is very easy, बहुत आसान है. But with some countries it is very difficult to enter. तो you have to take that. तो जब आप उस country में जा रहे हो तो उनका political system, उनके risk वो हमारे यहाँ पे आएंगे तो वही. Political factors such as type of government, मतलब whether it is allowing. 1991 तक India did not allow easy international trade. तो हो सकता है उस कंट्री में ट्रेड बैरियर हो. Political party system, its ideology, political risk have a profound impact on business operations.
सिंस अ बिजनेस पर्सन इज familiar with his or own तो उसे पता है. तब भी आपको पता है when the government changes, there is a lot of stake of the business people. क्योंकि जो नया मान लो नरेंद्र मोदी जी चले गए, कोई और पार्टी आ गई, बिजनेस में ज़रूर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है. दिस इज़ बिकॉज एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़. लेकिन हम फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके ये पार्टी आएगी तो हमें ये फ़ायदा होगा, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस फॉर अदर कंट्रीज. Political environment differs from one country to another. One needs to make special efforts to understand the differing political environments. Like हमारे यहाँ democracy है. In China, you have one party system. They are towards a communist. Since political environment keep on changing, one needs to monitor political changes on an ongoing basis in the concerned countries and devise strategies to deal with the diverse political risks. A major problem with a foreign country's political environment is tendency among nations to favor products and services originating in their own countries to those coming from other countries. It's very हम नहीं करेंगे. अगर हमारे पास में आज मैं एक देर इज़ वन फेमस शो नाउडेज एयरिंग ऑन सोनी, शार्क इंडिया करके है. इट्स अ वेरी गुड एंड आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू सी दैट. इट्स वेरी रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब टू दिस बिजनेस. तो एक मतलब बोट के लिए बात कर रहे थे. उसका जो एक जज है वो बोट का है. तो बोट completely manufactured है. तो don't we want that Indian manufactured product should be given more importance? That is all. While this is not a problem for business firms operating domestically, it quite often becomes a severe problem for the firms interested in exporting their goods and services to other nations or setting up their plants in overseas market. क्योंकि वो लोग तो पहले यही देखेंगे ना. In fact, I think Bill Gates था या फिर ट्रम्प था, he said that if my political power comes तो मैं सारे के सारे जो नॉन अमेरिकन हैं उनको निकाल दूंगा. Because he wanted that most of the positions right now is acquired by South Asian people. तो वो चाहते थे कि वहाँ पर उनके अपने लोग आए. तो it happens. Business regulations and policies, मतलब tariff, taxation policy, import quota policy, subsidies, आपके अपने laws हैं. That would also, coupled with its socio-economic and political, each country evolves its own set of business laws and regulations. आजकल थोड़ा सा अच्छा है इन MBAs एंड इन BBAs हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल लॉ. मतलब we have a subject which is called as international law. You know why this international law is we are studying this. This is because if you are studying the international law, international labor law, तो when you are setting up your country, मतलब कि आप अपनी जो business है उसको आप अगर इतने लोगों के साथ set कर रहे हो, तो that would help you out. That would help you out. Whereas if you are not studying, then it is very difficult because आजकल क्या है, WTO has made certain laws. WTO ने कुछ common law भी बना दिया है. So we can use. Though these laws, regulations and economic policies are more or less uniformly applicable, they differ widely among nations. You have to see. And कई बार the countries often discriminate against foreign products, service and capital. No doubt अभी बहुत कम है. Currency. Within India you are using rupee, but if you are using, a problem क्या होती है कि जो currency का rate होता है वो fluctuate होता है. देर इज़ मतलब कि एक ये बहुत बड़ा नुकसान होता है. अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आई टेल यू, इवन दो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज़ रिलेटेड.
one of our known to person had applied for a Canadian college. अब हुआ क्या कि उनका मतलब जो कनाडा का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग तो यू विल मतलब आप अप्लाई कर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई कर दिया, मतलब कि आप में से किसी ने अप्लाई कर दिया, राइट, नाउ यू हैव अप्लाइड देयर, बीबीए अप्लाई कर दिया, अब नाउ यू हैव अप्लाइड फॉर बीबीए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास आइल्स, आपको आइल्स पास करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कॉलेज, नाउ यू गॉट द बेस्ट पब्लिक कॉलेज, वहाँ दो तरीके के कॉलेज हैं, एक पब्लिक कॉलेज होता है और एक प्राइवेट होता है, फीस तकरीबन सेम होती है, नाउ यू गॉट इनटू अ कॉलेज, अब कॉलेज में एडमिशन के बाद क्या होगा, द फर्स्ट प्रोसीजर इज दैट यू हैव टू यू नो सबमिट योर SOP, दैट इज स्टडी ऑफ पर्पस, कि आप वहाँ जाकर क्यों पढ़ना चाहते हो, वाई नॉट बीबी आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे, एंड देन व्हेन इट इज़ वो आपका हो गया, तो देन योर मतलब कि आपको जो है स्टडी वीज़ा दे विल परमिट, तो देन यू हैव टू सबमिट GIC करके उनका एक अकाउंट होता है, वो आपको ओपन करना होता है, एंड दैट इज़ आपका $5,500 कुछ है, आज मतलब उस करंट डे में, जैसे आज मुझे करना है तो आज की डेट पे जो भी मेरा रेट होगा ₹60 ₹70 मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूँगी, राइट, एंड देन वंस दीज फॉर्मेलिटीज़ आर ओवर देन यू सबमिट योर फीस, फिर आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा कर दो। नाउ दिस बॉय जो है उसका वहाँ तक तो हो गया था, तो उसको GIC के लिए बोल दिया गया था, सो ही अप्लाइड फॉर द वीज़ा एंड साथ में उसने GIC जमा कर दिया। नाउ GIC उसने जब जमा किया था तो उस वक्त में इट वॉज अराउंड 55,000, मतलब 55 था इंटू 5500 इंटू कुछ ऐसा था, तो 5.5 लाख उसका पड़ा, ही हैड टू डिपॉजिट 5.5 लाख रुपीज़, ही डिपॉजिटेड, मतलब उस दिन का जो रेट था। नाउ व्हाट हैपेंड इज हिज वीज़ा गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस, एक बार तो उसका इसलिए हुआ दैट उसका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था वो रॉन्ग था, तो दे डोंट वांट दैट यू आर सेटलिंग देयर, तो उसका दूसरी बार जो है ड्यू टू पैंडेमिक कुछ था, अभी रिसेंटली 1 वीक बिफोर ही हैड उसका रिजेक्ट हो गया। नाउ व्हेन हिज वीज़ा वाज रिजेक्टेड तो उसको GIC वापस मिलना था क्योंकि दैट इज़ रिफंडेबल, यू नो व्हाट हैपेंड, उसको जब रिफंड मिला, तो डॉलर का रेट कम हो गया एंड ही हैड टू इनकर लॉस, he had to incur loss. When he deposited तो it was around 5.5 lakh, उसको वापस मिला है तो he has got 5,10,000 कुछ वापस। दिस इज़ वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी होता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल में हम डील करते हैं तो जो रेट होता है वो, अगर आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस है एंड यू हैव, आपने मतलब कि अपने जो ट्रेडर है, अपने जो बिजनेसमैन है, उनसे पहले से ही आपने जो है मतलब देयर इज़ वन, उसका एक क्लॉज होता है, अगर आपने बोल दिया कि वॉट एवर रेट कम होगा या ज़्यादा होगा हम यही करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने फ्लक्चुएटिंग में कर रखा है एंड देन कोई उतार चढ़ाव हुआ तो देयर इज तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। अनदर important difference between domestic and international is latter involves the use of different currencies, and the price of one currency is expressed in relation to another and it keeps on fluctuating. So it adds to the problem of international business firms in fixing price of their products and hedging against foreign exchange risk. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है and this is really a practical problem. It's a practical problem. Now we will be doing only the scope of international business को हम सिर्फ एक बार go through करेंगे, we will not be reading it in very deep में नहीं जाएंगे,
We will go to the benefits of international, that's to the countries and to the firms. बस इतना हम जाएंगे. Will not go to ये वाला जो है ना exporting, importing, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि these are not in your part of your. Only the scope का मतलब है how we enter. One is export and import. अब export और import को हम goods भी हमारे export import हो सकते हैं and हमारे what we call as services भी. Today you can get the service of any मतलब की thing across the globe. Tourism, entertainment, आपके प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक कंसल्टेंसी, आपके जितने भी आपके बड़े बड़ी कंपनीज हैं, मैकेंसीज वगैरह जो हैं, दे आर ऑल बेस्ड इन यूएस. स्टिल वी गेट देयर कंसल्टेशंस. दीज आर ऑल देयर. तो हाउ एक हमारा है, आप अगर आपको सेटअप करना अपना इंटरनेशनल बिजनेस, तो पहला होता नॉर्मली लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं. मीन्स अगर कोई ऐसा देश है जहाँ सामान सस्ता मिलता है, हम इंपोर्ट करके यहाँ पर बेच सकते हैं. लाइक चाइना से हमारे काफ़ी इंपोर्ट्स रहते हैं. मे बी यू हैव समथिंग विच यू फील इसकी जो डिमांड है दैट इज़ मोर इन अदर कंट्रीज, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो. एंड व्हेन इट इज़ टैंजिबल इट बिकम्स मर्चेंडाइज. एंड इनविजिबल यानी कि सर्विसेज लाइक आपका टूरिज्म, देन आपके एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग, रिसर्च, एजुकेशन. आजकल आप देख सकते हो कि यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन, अगर आप इफ़ यू आर ऑन टू द गूगल एंड ऑल, you can see number of online courses are there which you can pursue. This is also now easy. So you can have all these things through, that is also an international business. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस सर्विसेज आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. ये हमारा सबसे ज़्यादा रहा है, ये आप देख सकते हो. बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, देन रेंटल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, ये बहुत रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रहे हैं. लाइक हमारे जो मेट्रोज हैं, दे हैव बीन आउटसोर्स्ड टू जापानीज फर्म्स. दे आर गिविंग देयर सर्विसेज. उसके बदले में वी पे देम सम सर्विस. एंड टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट हैज़ increased drastically for the past few years. Licensing and franchisee. As I said, licensing and franchisee दोनों जो है दे आर, कहने के वो सिनोनिम्स है. बट लाइसेंसिंग होता है व्हेन यू आर अलाउिंग योर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपी राइट्स बाय गिविंग देम द, उनको आप लाइसेंस दे रहे हो कि आप हमारी जो पेटेंट है उसको यूज़ करो. एंड फ्रेंचाइजिंग होता है व्हेन यू आर अलाउिंग देम फॉर द सर्विसेज. Licensing is referred to goods and franchisee is referred to services. Like McDonald, KFC, ये सब आपके जो है फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, मतलब हम उनका यहाँ आउटलेट खोल रहे हैं. एंड इन लाइसेंसिंग दे परमिट अस टू यूज़ देयर प्रोडक्ट्स, जो भी आपकी उनके फार्मूलाज वगैरह हैं उनको यहाँ यूज़ कर. मूवीज़ हमारे होते हैं, बुक्स हमारे होते हैं, उनमें कॉपीराइट्स होते हैं. देन ट्रेडमार्क आपका पेप्सी एंड कोको कोला के लिए है. आपके पेटेंट्स आपके होते हैं लाइक कोई गाड़ी बनती है, तो गाड़ी बनती है तो उनके डिज़ाइंस होते हैं, तो उनके जो डिज़ाइंस होते हैं हम उनको सेल ऑफ कर सकते हैं. हम उनको सेल ऑफ कर सकते हैं कि आप, मतलब हम तो यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे बट हमारे नाम से दे कैन ऑल्सो, दे विल बी पेइंग अस सम फीस एंड दे विल टेक दैट पेटेंट और दैट डिज़ाइन. ठीक है. नेक्स्ट इज एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज
in each other countries. एक आपका हो सकता है डायरेक्ट और दूसरा आपका हो सकता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. अगेन दिस हैज कम इन द पेपर. डायरेक्ट आपका होता है व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी सच एज प्लांट एंड मशीनरी, लाइक अभी एप्पल ने हमारे यहाँ किया है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी, एंड इट कैन बी थ्रू जॉइंट वेंचर और पीपीपी. पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. यानी कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, वहाँ का कोई प्राइवेट है, उनके बीच में पार्टनरशिप है. वहाँ का गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, हमारा प्राइवेट कंपनी है, हमारे बीच पार्टनरशिप है. वी आर साइनिंग MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हम उनको अपने सर्विसेज या मतलब कि हम वी आर इन्वेस्टिंग. A company, if it so desires, can also set up a wholly owned subsidiary. यानी कि सब कुछ wholly का मतलब उन्हीं का कंट्रोल रहेगा. 100% इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन वेंचर्स, फुल कंट्रोल. मतलब ये सारा आपका होता है FDI के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. या तो वो यहाँ पर प्लांट मशीनरी जगह भी खरीद लेगा, यहीं पे कर लेगा, या हो सकता है कि यहाँ पे वो ज़मीन किराए पे ले लेगा एंड अपना प्लांट एंड मशीनरी जो है वो करेगा. एंड दूसरा आपका होता है पोर्टफोलियो, यानी कि हमारे किसी भी कंपनी में शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें. ऐसे बड़े सारे कंपनीज हैं जैसे अलीबाबा, येस बैंक, अलीबाबा, ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है. जैसे हमारे यहाँ पर वो है बायजूस है, उसको पीछे से आपको जो है फंडिंग मिलती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है. देन आपका वो है दिस शाहरुख खान का जो है, तो नोएडा में जो एक वो है किड्जानिया, उसको पीछे से मतलब कि फंडिंग मिल रही है. सो यू कैन गेट इट. So this is how foreign business goes on. Now the next is what is the benefits. Benefits सबको होते हैं, to the people who are involved in the business and also to the country. मतलब अगर हमारी कंट्री में मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स, तो through the taxes we are providing GDP to our country. Earning of foreign exchange. International business helps a country to earn foreign exchange which it can later use for meeting its imports of capital goods, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम. अगर कंट्री टू कंट्री में अगर रिलेशन है, मतलब नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल. अगर कंट्री टू कंट्री है, अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और हमारे पास इम्पोर्ट्स है, तो हम लोग उस एक्सपोर्ट से आए हुए पैसे को इम्पोर्ट में भी लगा सकते हैं. मोर एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. एज स्टेटेड अर्लियर, international business operates on a simple principle: produce what your country can produce more efficiently and trade the surplus so generated with surplus production with other countries to procure what they can produce. मतलब हमारे पास कुछ चीज़ों में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मैन पावर बहुत है. इन इंडिया वी find abundant natural resources and manpower, but we don't have technology. So we can outsource those technological things from other countries. Similarly, दूसरी countries में technology है लेकिन man power नहीं है, they can use it. यानी कि when we are pooling the goods and services, when we are using the resources, दोनों को फ़ायदा होता है. तो country
both the countries, 3-4 countries, जैसे we are giving our मैन पावर टू कंट्रीज, हमने अलाउ किया है फॉरेन कंट्रीज को दैट हमने फॉरेन कंट्रीज को अलाउ किया है कि वो हमारे यहाँ के जो मैन पावर है उनको यूज़ कर सकते हैं. मीन्स हमने रिलैक्स किया है अपने वेज उसमें, लेबर लॉस में, मतलब कि जो लेबर लॉस हैं उनमें, देन वेजेस में हमने उनको ईज आउट किया है कि यू कैन यूज़ इट. जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर तो द पर्सन हैज़ मेनी सेफ्टी, लेकिन अगर एक पर्सन एमएनसी में काम करता है तो उसको नहीं मिलता है. तो वो जो ईज आउट दिया हुआ है कि ओके आप काम करवा लो, तो लेबर पॉलिसीज़ जो हैं वो हमने कर रखे हैं. दैट वी हैव डन इन दिस मैनर. हमारे पास मैन पावर है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं. दिस वे वी आर पूलिंग, improving growth prospects and employment potentials. Producing solely for the purpose of domestic consumption severely restricts a country's prospects for growth and employment. 71 से 80 के बीच में देखो आप, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था क्योंकि हमारे पास सर्विस सेक्टर थे ही नहीं. अभी भी है, ऐसा नहीं कि नाउ वी हैव कम्प्लीटली गॉट रिड ऑफ. नो, वो तो हमारे पास अभी भी है. Yet to much extent we have the opportunities. Many countries, especially the developing ones, could not execute their plans to produce on a large scale and thus create employment for people because their domestic market was not large enough. Later, Singapore, South Korea, China, which saw market for their product in the foreign country, embarked upon export and flourish. Now they are doing it. This helped not only in improving their growth prospects but also created opportunity. कैसे? China. Let us come to China और South Korea. पहले उनके पास इतना नहीं था, फिर उन्होंने देखा कि अगर वो ऐसा कोई पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा कोई प्लान बनाते हैं कि उनके पास जो प्रोडक्ट है उसे वो दूसरे देशों में सस्ते में बेचें, तो नेचुरल है कि अब हर एक कंट्री जो है वो चाइना से ही रॉ मटेरियल मंगवाता है, साउथ कोरिया से ही मंगवाता है. उससे क्या हुआ, उनका तो फ़ायदा हो गया, प्लस क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बन गई उनकी. इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, as I had already, shared with you about my mother. I mean, that's a reality. 20 years back, you can, 20, of course, 30 years back, you could never think of getting anything which is imported. वो एक टैग लगा होता था यहाँ पर, imported. Now nobody knows. हमारे हाथ में हम पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, and most of the products are having some or the other, and it is easy to buy now. In the absence of international trade of goods and services, it would not have possible for the world community to consume goods and services produced in other countries, and people in these countries are able to consume and enjoy a higher standard of living. Now, owning any kind of mobile is not a dream. So that has helped. What are the benefits, prospects for higher profit? कई बार क्या होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी यू मे नॉट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, इन योर कंट्री. यहाँ पर अगर प्राइस लो है, मैंने आपको हल्दीराम का एक एग्जांपल बताया था, आप कभी भी हल्दीराम का एक पढ़ना, हाउ मच वॉज देयर अर्निंग, पहले कुछ नहीं था, बट नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर हैविंग अ वेरी गुड प्रॉफिट. दैट्स देयर. टुडे व्हेन आई वाज मतलब कि मैं देख रही थी, मैं पढ़ रही थी मैं, तो देर आर मेनी स्टार्टअप्स विच आर नॉट selling their goods in India. They are directly selling to other areas. That has given them more profit. Increased
capacity utilization. Means many firms set up production and capacities for their products which are in excess demand in domestic market. By planning overseas expansion and procuring order from foreign customers, they can think of making use of their surplus production capacities and also improve the profitability of their operation. होता क्या है कि जब आप किसी भी सामान को मान लो आपको दो चीज़ करनी है तो उसका कॉस्ट हमेशा कम पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम ऑन 200 तो उसका कॉस्ट आपका मार्जिनली कम हो जाएगा. एंड इफ़ इट इज़ ऑन 2000 तो वो और कम हो जाएगा. एंड ऐसे बढ़ते 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 तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब जितना लार्ज स्केल उतना आपका कॉस्ट फैक्टर कम हो जाता है. उतना आपका कॉस्ट फैक्टर कम हो जाता है. प्रोडक्शन ऑन अ लार्जर स्केल ऑफन लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल which in turn lowers production cost and improves per unit profit margin. अगर आपने अपनी इंडिया के अंदर ही आप ग्रोथ कर रहे हो, आपका पर मंथ 1000 यूनिट्स है, आपका कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. आपने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया है, आपने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. यू हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड एनीथिंग ऑन द क्वालिटी. द ओनली थिंग इज नाउ योर प्रोडक्शन इज ऑन लार्जर स्केल. देन व्हाट विल हैपन इज आपका कॉस्ट प्रोडक्ट इनफैक्ट पहले से कम हो जाएगा. And most of the companies right now, name any mobile company, name any TV company, name any technological company, they are using the same strategy for this. Business firms find it quite frustrating when the demand for their products starts getting saturated in the domestic market. Saturated मतलब एक टाइम के बाद आप वही चीज़ को बार बार तो खरीदोगे नहीं. Such firms can considerably improve prospects of their growth by plunging into overseas. This is precisely what has prompted many of the multinational from developed country to enter into markets of developing. Like वहाँ पर तो ये सब चीज़ें when इंडिया के अंदर ब्लैकबेरी को ऐसे करके देखते थे, तब तो ब्लैकबेरी was a common thing in US. And if you go to any developed country, I'm talking about the developed country, वहाँ holding an Apple phone is nothing and they don't even boast. हमारे यहाँ पर तो अगर Apple phone है तो हम ऐसे फ़ोन लगाते हैं ऐसे कि भाई दिखाई दे कि वो Apple का लोगो दिख रहा है. They don't bother. They don't even take out their phones. मतलब उनका अपना रहता है. And this is saturation है क्योंकि वहाँ पर अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. They are using it. Now हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाती है. इट मे बी अ फोन, इट मे बी समथिंग एल्स. सो दे स्टार्टेड. इसी तरीके से तो आपका एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, दे ऑल हैव बिकम द जायंट प्लेयर्स. वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट. देर आर सम प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स इंडिया के अंदर तो ज़बरदस्त है. You enter into the textile field and you will find आपके जैसे तो लाखों हैं. You may find your brand is very good, but आप वहाँ पर देखोगे आपसे भी better brand है. There are people who are from IIMs, there are people who are from NIFT, they are having tough competition हो जाता है. But if you are able to एक country का भी अगर आप market को पकड़ लेते हो ना तो it's easy for you. When competition in the domestic market is very intense, internationalism seems to be the only way to achieve significant growth. Highly competitive domestic market drives many companies to go to international in search of market for their products. Even आपको पता है फॉरेन की भी कई चीज़ें जो है ना वहाँ नहीं बिकती हैं. हम पता है बोलते हैं ऐसे ये चीज़ें वहाँ पर 1 रुपये में बिकती हैं और हम यहाँ पर उसे 100 रुपये में ले लेते हैं. मतलब इट इज़ ऑन द बोथ ऑफ द साइड. वी मे नॉट बी फीलिंग दैट. वहाँ पर है, वहाँ पे टफ कंपटीशन है, उनके पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बट व्हेन दे सेल इट आउट हियर इट्स इजीली बॉट. International business thus acts as a catalyst of growth for firms facing
tough market condition on the domestic turf. दो चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, आपको पता है, एक कंपटीशन होना और दूसरा कंपटीशन नहीं होना. एक कंपटीशन होना और दूसरा कंपटीशन नहीं होना. हाउ? इफ कंपटीशन इज मोर, यू आर नॉट एबल टू, अगर आपके सामने 100 प्रोडक्ट्स हैं और 100 के 100 एक जैसे, आप किसको खरीदोगे? तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट सैचुरेट होकर नहीं रहेगा. ऑन द अदर हैंड कंपटीशन है ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा यार पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, व्हाई शुड आई बाय दिस, बड़ा नया सा लग रहा है. देन ऑल्सो सो इन दिस में वे, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में हो तो यू विल फाइंड द प्लेयर्स. इट्स लाइक सी और ओशन जहां पर एवरी फिश हैज गॉट इट्स प्लेस, बट आपको कितना सेट करना है ये आपके ऊपर है. द ग्रोथ ऑफ international business, I'll tell you this after this one. The growth of international business of many companies is essentially a part of business policies or strategic management. This has come from the urge to grow, the need to become more competitive, the need to diversify and to gain strategic advantages of international, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बाहर से मिलती हैं. सो योर बिजनेस विजन का मतलब हो जाता है फोरसाइटेडनेस. अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, तो देन ग्रो करने के लिए आपको अपना जो पैर है, यू हैव टू स्ट्रेच इट अक्रॉस द ग्लोब. अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी जगह पर बैठकर सिर्फ अपने एरिया को कर लूँगा, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. I'll tell you one example. अभी आज की ही बात थी. In fact, today I was having a counseling session with one of my students. तो he told me कि उनका जो business है right now, it's going in loss. तो he asked me कि मैम मतलब business तो अनसर्टन है, मतलब उसका जो कन्फ्यूजन था वो ये था कि business is uncertain तो I should go for service. So I told him that nothing is certain. When the business closes, services are also closed. तो then I ask कि where does the actually business में क्या प्रॉब्लम आती है. तो ये जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, now they have वो बता रहे थे कि उनके जो वेंडर्स हैं वो लोग अब इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. इनका जो बिजनेस है, इवन दो इट्स वेरी फ्लरिशिंग, बट दे हैड कैप्चर्ड ओनली पोर्शन ऑफ Delhi. Now the competition is among Delhi and international market. Since इनके फादर जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, तो ही इज़ नॉट एबल टू स्प्रेड इट. तो उनको जो है ही इज मतलब कि फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टैंड इन दैट मार्केट. देन आई टोल्ड हिम अबाउट द विजन कि आप इसको हाउ यू कैन बाय स्टडिंग, आप उसको कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई अपनी इसी फील्ड को, आप उसके अंदर अपग्रेडेशन कैसे लेकर आ सकते हो. बिकॉज वेन वी आर इन टू द बिजनेस सर्टन टाइम्स वी डोंट नो व्हाट आर द अपग्रेडेशन दैट हैव कम इन. देयर आर रूल्स, बट आपको हर रूल आपको नहीं पता होगा कि प्रोडक्शन के अंदर आपको मार्केट में आने के बाद पता लगेगा कि देयर प्रोडक्ट इज बेटर बिकॉज दे हैव यूज्ड अ बेटर टेक्नोलॉजी. एंड बेटर टेक्नोलॉजी उनको सस्ते में मिल गई, ये आपको बाद में पता लगता है. इंटरनेशनल बिजनेस में ये एक फ़ायदा हो जाता है दैट यू कैन गेट इन टू दैट विजन व्हेन यू आर इन टू द इंटरनेशनल प्लेयर. दिस इज हाउ इंटरनेशनल बिजनेस कम्स आउट. इसके आगे का जितना आपका है, एवरीथिंग राइट नाउ इज ओमिटेड राइट नाउ. इफ़ देर इज़ एनी न्यूज़, क्योंकि पहले ये सब कुछ था, जितनी बड़ी जो है ना, ऑल द documents you have to learn, all the export and import policy, export and import procedure, everything was there. Right now it has been omitted, but they have said that they will wait for the CBSE's
what we say, उनका जो अभी आना है, they may be bringing up, looking at the pandemic situation. So maybe that you are not having this much, तो अच्छा ही होगा आपके लिए. But till here, kindly go through the book